students, welcome to Vision Unlimited. So today I am going to discuss with you what is nth term of an AP. In my last video I have discussed AP क्या होता है और AP में first term क्या होता है और common difference क्या होता है. Today I am going to discuss with you nth term of an AP. nth term of an AP कैसे निकालते हैं हम लोग. If I take A1 as the first term, A1 क्या रहता है मेरा first term is given by A. A2 इसमें मैं फिक्स्ड डिफरेंस ऐड करती हूँ, इट विल कम आउट टू बी A प्लस D. A3 मेरे पास क्या रहता है A प्लस 2D. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी अगर A1 आ रहा है तो यहाँ पे A प्लस 0D हो रहा है, A2 आ रहा है तो A प्लस D हो रहा है, एक उससे कम हो रहा है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. सो इट मीन्स योर AN जनरल टर्म क्या होगी यहाँ से, इट विल बी A प्लस N माइनस 1 इंटू D. उससे एक कम, N एक कम हो जाएगा. See, अगर मैं n की जगह 3 लगाती हूँ, A3 will be equal to A plus 2D. Done. So nth term will be given by, you have to remember this formula in order to solve any of the question based on the nth term of an AP. So it is AN is equal to A plus N minus 1 into T. This is called journal term of the AP. So nth term is journal term of the AP. Now if in case the number of terms in an AP is n, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो जाएंगी तो an जो an आपकी an आएगी, दैट विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दैट AP. अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो जो an आप लिख रहे हैं दैट विल बी द लास्ट टर्म. और लास्ट टर्म को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, L इज इक्वल टू an. लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, L के साथ में. सो L इज इक्वल टू an इन द केस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर n. ओके. Now we will consider some questions based on nth term. In order to solve these questions, you simply have to remember the formula of the nth term. Formula is an is equal to A plus n minus 1 into D. So write down the question. Find the nth term of the AP. AP मुझे क्या given है? You have to find the nth term of the AP. 5, 8, 11, 14. And so on. Given AP is this. You have to write the nth term. Question है मेरे पास. Find nth term and hence find 25th term. ये question है मेरे पास. You have to find from this AP. हमें क्या निकालना है, nth term and 25th term. Now see, nth term का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. AN is equal to A plus N minus 1 into D. This was the formula. अब फॉर्मूले में देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए. N तो यहाँ पे nth टर्म है तो N का N ही रहेगा, N की जगह में कुछ पुट नहीं कर सकती. A मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ फ्रॉम अबव AP. A का वैल्यू क्या है 5 एंड D का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस. हाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमने उस दिन किया था, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है. 8 minus 5, it is 3. So 8 minus 5 is 3. Again you can check. 11 minus 8 is 3. 14 minus 11 is again 3. So A is 5 and D is 3. Put the values in this. You will get the nth term. AN is equal to 5 plus N minus 1 into 3. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, AN is equal to 5 plus 3N minus 3. मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया. What I'll get? So 2 plus 3n is the nth term. Nth term is the journal term here in this case because it is not given. हमें number of terms तो specified है ही नहीं. तो यहाँ पर nth term an is the journal term. तो यहाँ से journal term में by putting n is equal to 25, I can find the A25, that is 25th term. Let us put n is equal to 25. क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 plus 3 into 25 कितना हो जाएगा, 2 plus 25 into 3, 75. So it is 77 is the answer. So 77 is your 25th term. Done. Okay. Let us consider one more question. Question change हो गया. अब क्वेश्चन में क्या है, हमें AP दिया हुआ है और हमें देखना है कि ये जो टर्म पर्टिकुलर है ये इसकी कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब nth टर्म, n का वैल्यू क्या रहेगा. क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन. Which term of the AP? AP मेरे को क्या गिवन है, सबसे पहले नोट करो. AP is क्या गिवन है मुझे, -1, 3, 7, 11 and so on.
अब क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज, विच टर्म इज 195। क्वेश्चन है विच टर्म इज 195, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, मुझे चेक करना है 195 इस एपी में आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो ये इस एपी की कौन सी टर्म होगी। ठीक है, अब यहां पे तो क्लियर कट दिया है विच टर्म इज 195 मींस 195 इज टर्म ऑफ एपी। समटाइम मुझे क्वेश्चन आता है चेक करना वेदर दिस टर्म ऑफ द एपी और नॉट। अब यहां पे मुझे पता है कि 195 इसकी टर्म है, मुझे चेक करना है n का वैल्यू क्या है। मैं सपोज कर लेती हूं लेट 195 बी nth टर्म। अगर मैं सपोज कर लूं 195 इज दी nth टर्म ऑफ द अबव एपी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से अबव एपी में an, अगर ये an इज इक्वल टू 195 है मेरे पास, तो 195 an का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है ना, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला था, हमने पहले से किया हुआ है। तो यहां पर an की जगह मैं लगाऊंगी 195। a का वैल्यू आपको ऊपर से मिल रहा है, फर्स्ट टर्म इज -1 प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता, d का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहां पर d की वैल्यू के लिए बी वेरी केयरफुल, इट इज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सो इट इज 3 माइनस ऑफ -1। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो इट इज 4। सो योर कॉमन डिफरेंस इज 4 हियर। मेरे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस 4n माइनस 4, क्या हो जाएगा मेरे पास 4n -1 और -4 इज -5, सो इट इज 4n -5। मेरे पास फाइनली क्या आ गया 195 इज इक्वल टू 4n -5। अब इस -5 को इधर ले जाती हूं मैं, क्या बन जाएगी इक्वेशन 195 प्लस 5 इज 200, 4n इज इक्वल टू 200, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। डन, सो इट मींस 50th टर्म ऑफ दिस एपी इज 195। डन, लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन here. Yes students, now let us consider one more question based on nth term. So question is how many terms are there in the list of numbers 3, 6, 9, 12 so on up to 111. अब सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एपी का कोई फॉर्मूला लगा रही हूँ, आर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्मिंग एन एपी। लेट्स चेक इट, 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। 6 minus 3 3, 9 minus 6 is 3, 12 minus 9 is 3, so it means this list of numbers is forming an AP. अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, how many terms are there in this list, means I have to find n। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लेती हूँ तो मुझे n निकालना है। तो मैं क्वेश्चन में सपोज कर लेती हूँ लेट नंबर ऑफ, जो मुझे निकालना है उसको मैं सपोज कर लेती हूँ लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, वो मैंने सपोज कर लिया n। अब इस AP को देखकर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकती हूँ, यहां से मेरे को क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, a दैट इज फर्स्ट टर्म इज 3, और क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, b इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में समझा था वो क्या था, इफ इन एनी AP नंबर ऑफ टर्म्स आर n देन लास्ट टर्म विल बी कंसिडर्ड एज an। तो यहां पर मेरे पास l इज इक्वल टू an क्या हो जाएगा 111। अब ये सारी टर्म्स a, d और an को लेकर मुझे कौन सा फॉर्मूला आता है, nth टर्म का फॉर्मूला। लेट्स राइट द फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 111 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू मुझे नहीं पता, d का वैल्यू क्या है 3, तो ये 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ गया, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। 108 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 36। यहां से 1 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, आई गेट n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 दैट इज 37। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP आर 37। डन, ओके। Yes students, now let us consider this question. This type of problem is also very important. This can come for 3 marks.
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। सो मुझे अगेन यहाँ पे क्या निकालना है, n, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उससे क्या डिफरेंस आया, हियर AP इज नॉट गिवन, ठीक है। सो फर्स्टली आई हैव टू राइट द AP लिखने के बाद में आई विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, यू ऑल नो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। अब मुझे क्या है, डिविजिबल बाय 11, तो 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 100 से ऊपर आइए, कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 11 है, ऑल ऑफ यू नो 110 इज डिविजिबल बाय 11। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 इज 110। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 इज 110। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास कौन सा आ गया, 110। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इट विल बी 121, यही होगा 11 से डिविजिबल, फिर सो ऑन आगे 11 से डिविजिबिलिटी में चेक करती जाऊंगी। मुझे यहाँ पे सब नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे लास्ट नंबर चाहिए। अब सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, इट इज 999। अब 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, चेक कर लेते हैं है या नहीं। वैसे तो क्लियर है इट इज नॉट डिविजिबल, लेकिन स्टिल वी विल चेक। आई एम डिवाइडिंग 999 बाय 11, मेरे पास क्या आएगा, 11 9s 99, दैट इज 0, 9 नीचे आ गया, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 9। अब इट मींस अगर मैं 9 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 9 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर आप डिवीजन एल्गोरिथम के साथ इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर क्लियर है कि 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, बट अगर इस 9 को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, बन जाएगा 990 इज इक्वल टू 11 इंटू 9। नाउ इट्स क्लियर दैट 990 इज डिविजिबल बाय 11। So we have got that 990 is the largest 3 digit number which is divisible by 11. Now अब मेरे पास 999 नहीं रहेगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 990। Now we have got the AP आ गया मेरे पास। अब मुझे देखना है हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी पे अब मुझे काम करना है, कितने नंबर्स हैं। अगेन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट n be the number of 3 digit numbers divisible by 11 आ गया। अब यहां पर इस AP के लिए, AP तो बनी रही है ना, इस AP के लिए A क्या है 110, B क्या है 11, and since number of terms is n, so last term will be considered as an। तो an मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 990, गॉट इट। 990 मेरे पास क्या आ गया an। अब देखिए यहाँ पे फिर मुझे इन तीनों चीजों को लेकर विच फॉर्मूला आई एम हैविंग, an का फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज मुझे पता है इसमें पुट कर दीजिए। इट इज 990 इज इक्वल टू 110 प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d मुझे पता है, इट्स 11। 990 माइनस 110 कितना हो जाएगा 880। दिस इंप्लाइज 880, यहाँ पे भी इंप्लाइज आएगा 880 इज इक्वल टू n minus 1 into 11. Now I'm going to divide 880 by 11. What I'll get? 80 आ जाएगा मेरे पास। 80 is equal to n minus 1. This implies n is equal to 81. So 81 3-digit numbers are divisible by 11. Got it? Let us consider one more question. Is 171 a term of the AP? अभी तक जो हम निकाल रहे थे डायरेक्टली, हमें अब क्वेश्चन दिया हुआ था Which term is this? जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें क्या था, Which term of this AP is 198? हमने ये क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे पूछा Is this a term of this AP or not? क्या ये इस AP में लायक करती है या नहीं करती, ये इस AP की टर्म है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं जो मुझे गिवन AP है उस AP में से मैं मैक्सिमम क्या क्या लिख सकती हूँ। लेट्स सी, 2a is the first term, d common difference also I can write, that is 5 minus 2 is 3. So
So, अब मेरे को देखना है कि ये इसकी टर्म है या नहीं। तो मैं सपोज कर लेती हूं, लेट 171 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। मैं सपोज कर लेती हूँ ये इसकी nth टर्म है, दैट इज an इज इक्वल टू 171। an का फॉर्मूला आपको आता है, लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 171। Now I know the value of a, I know the value of d, but I don't know the value of n. n का वैल्यू मुझे यहाँ निकालना है। Okay, a is 2 plus n minus 1 into d is equal to 171. 171 minus 2 कितना आ जाएगा? It will be n minus 1 into d. d का वैल्यू भी हम यहाँ लगा देंगे। d का वैल्यू कितना था? 3. So it is n minus 1 into 3 is equal to 171 minus 2. 171 minus 2 is 169. So 169 divided by 3. n minus 1 is equal to 169 divided by 3. नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको यही छोड़ देती हूँ। ये 1 को मैं डायरेक्टली इधर ले जाती हूँ। n इज इक्वल टू 169 ओवर 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 169 170 172 डिवाइडेड बाय 3। देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 3 5 15 16 22 नहीं है डिविजिबल, सो इट विल नॉट बी, दिस इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर। सी, which is not equal to a whole number, it is not equal to whole number। but अगर ये इसकी टर्म है, if and this 171 is a term of this AP, इसके लिए मेरी foremost condition क्या है कि n जो है, n should be a whole number। होल नंबर नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, होल नंबर नहीं बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे n is a natural number। रीजन मीइंग, अगर मैं होल नंबर ले रही हूं तो होल नंबर में 0 भी आ जाता है, 0 प्लेस वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर है। So that's why this 171 is not a term of this AP. Done. Let us consider one more question here. Consider one more question based on nth term of an AP. If 9 times 9th term is equal to 11 times 11th term, then you have to find the 20th term. हमें A20 निकालना है। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। This thing is given, you have to find this. अब यहाँ पर in order to find A20 हमें क्या क्या चाहिए? कोई भी AP लिखने के लिए we require at least 2 things, that is A and D। 2 चीजें चाहिए मुझे, और हमें पता है in order to find 2 things I require at least 2 conditions। 2 unknowns are there, so I require 2 conditions। But here in the question I am given with only 1 condition। So let us solve this very condition only। यहाँ से देखते हैं कुछ बनता है या नहीं बनता है। 9 times A9, 9 times A9, A9 आपका क्या है? If I suppose A as the first term and D as the common difference, then it is A plus 8D, and this is equal to 11 times A plus 10D। यही कंडीशन आएगी मेरे पास। Let me rub this, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए A और D के साथ में। Okay, so it is 9 times A plus 8D is equal to 11 times A plus 10D। Let us simplify it। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 9A plus 9 8 72D is equal to 11A plus 110D। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये क्या बन जाएगा? 11 minus 9 is 2A, and this is 110 minus this 72 minus 110, it will be minus 38, minus 38D। इसको एक साइड में ले जाते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, it will be A plus 19D is equal to 0। Can I write it like this? 2 तो बाहर रहेगा। A plus 19 को अगर मैं लिख लूं 20 minus 1 into D, it is equal to 0। What is this? What is this? This is A20 only, so this implies 2 times A20 is equal to 0, or you can say A20 is equal to 0। That is 20th term
when this condition is given is equal to 0.